हरिओम। हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। ओम प्रकृति देवी नमः। मेजर events of Israeli Zionist politics affecting the global geopolitic is all a Zionist movement and major drama mocking the public, both the sides, but it is something to think about. The Northwest and the war with the West, जो हमने आपको हमेशा से बताते आए हैं, blackout, darkness, it will all be created to hide the truth. कली की सरकार के बारे में सत्य सर्व कुछ सामने आ गया रहा। पीपल वर अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ कि तब लोगों को फिर से एक बड़े से भ्रम में लाने की ज़ायनिस्ट ने, वेस्टर्न ज़ायनिस्ट कंपनीज ने बड़ी प्रकार इसे सक्सेसफुली ऑपरेट किया। परंतु जैसे हमने आपको बताया है, कली जो भी कदम उठाएगा अभी वो उसके ही विरुद्ध कार्य करेगा। जैसे हमने हमेशा से आपको आराम से ही इस चैनल पर गुरुवर परशुराम जी के आने के बाद हमने ये एक ही बात हमेशा आपको बोली है, इज़राइल एंड यूएसए ये पूर्ण कली की सरकार है जो विश्व के इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर को कंट्रोल करती है। डिजीज़ेस को कंट्रोल करने का सारे नॉब्स इन्हीं के पास है। फाइनेंशियल टेररिज्म और पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल लीडर्स को पालने का काम भी यही करते हैं। झूठ, भ्रष्टाचार, हर प्रकार के विवाद क्रिएट करने का काम अमेरिका ने किया है विश्व में, हमेशा ये इतिहास बताता है। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। जब गोल्ड की सच्चाई सब कुछ सामने आ गई रही, फाइनेंशियल टेररिज्म पूर्ण रूप से हमने सामने ला दिया रहा। स्वर्ण का हमने बताया था 1 लाख के ऊपर पार होगा। स्वर्ण को, गोल्ड को एकत्रित करने के लिए अमेरिका ने ये युद्ध विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच में फिर से क्रिएट कर दिया। Pakistan being a hub of United States of America, and it is bound to side with America during the major World War III event. ये सब खेल रहे हैं जी, ये खेल रहे हैं। They are playing with each other, Israel and America. They are playing with the thoughts and beliefs of Bhartiyans. अफगानिस्तान को किसने बेचा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस? Here you can find so many things left behind by the US whenever they pulled out of Afghanistan. He's the only one I've found who actually has like used helmets and whatnot, like from the previous government. Look at all the flares. These are American. Yeah, they look like it. How much you sell these for? 30 Afghani, that's a good deal. I'll spend 100, I'll get 3 of them. That's a cool souvenir. I really wanted to find just one thing that America left behind here as far as their military supplies go. Thank you. It doesn't have any difficult for us for any checkpoint or something? I don't think so. It's nothing electric. It's only a simple light? Yeah, just a simple light. It's like, if it's, say if you're going into a cave and it's really dark, you could crack this, and then throw it into the cave, and then it would light up the cave. It's just chemical. किसने बेचे? ये रिपोर्ट में क्या दिखाता है? What does it show? देखो, खुलेआम बिकते हैं ये सारे वेपन्स। देखो इनको किस प्रकार बेच रहे हैं ये। Look at them. Look at them how the supermarket, local market, gully market is running in Afghanistan, bordering Pakistan. It is so easy to bring in weapons for spreading terrorism by using Pakistanis, जो already बेरोजगार है। They are being used by Americans and Israelis. The same kind of attack which is happening, heinous crimes are happening in Gaza, जहाँ पे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। They are being beheaded, they are being shot dead, women are being shot dead, civilians are being killed, butchered, massacred. Ethnic cleansing हो रहा है वहाँ पे। Someone who may have never committed any crime
अरे मारना है तो युद्ध मैदान में करो ना, युद्ध करो, आमने सामने मारो, कम से कम कुछ समझ में आता है, वॉर रूल्स का पालन होता है। सिविलियंस को मार के किसका भला हुआ है? सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी, सेम काइंड ऑफ अटैक भारत में पहलगाम में हुआ रहा जी। विक्टिम्स के आप बॉडीज को देखोगे, मेजॉरिटी को हेडशॉट पड़े हैं जी। ये ट्रेंड असासिन्स, ट्रेंड टेररिस्ट कहां से आए? अफगानिस्तान तालिबानी था ये, जो अनुमान लगाया जा सकता है एक्सपर्ट्स द्वारा, और जो हम बता रहे हैं कल की महाराज स्पष्ट आपको। ट्रेंड बाय CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड Zionist companies supplied weapons to spread this activity so that they can secure their financial terrorism and gold. जितने विवाद बने रहेंगे लोग मुद्दे से दूर चले जाएंगे। मुद्दा फाइनेंशियल टेररिज्म का है। भारत में वैसे ही आतंकवादी बैठे हुए हैं फाइनेंशियल टेररिस्ट रूप से, जो हेरा फेरी कर रहे हैं, पब्लिक मनी के साथ खेल रहे हैं, परचेसिंग पावर गिराते जा रहे हैं। ये अमेरिकन ज़ायनिस्ट है, यूरोपियन इजरायली ज़ायनिस्ट है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जी, हमने बताया है। यही होते हैं वो जो आतंकवादी हमले करवाते हैं, जो भारत में कर रहे हैं। कोई किसी के बाप में दम नहीं है बताने का, बताते नहीं है साले। क्यों? क्योंकि सच्चाई से दूर रखना चाहते हैं। अपने मात्र एडवर्टाइजमेंट्स और अपने मोनेटाइजिंग ऑफ द यूट्यूब चैनल के लिए करते हैं ये सारे। शर्म आनी चाहिए, साले बिके हुए हैं सब, सारे के सारे सच्चाई नहीं बता रहे। जरा ढंग से पढ़ के देखना चाहिए किसने आर्म सप्लाई किया है, रूट कॉज पे जाना चाहिए। अमेरिका के एक हब को डिस्ट्रॉय करके तुम अमेरिकन टेररिज्म को खत्म कर पाओगे? कर पाओगे क्या? अमेरिका के हजारों टेररिस्ट हब्स है दुनिया में फैलाए हुए, उसमें से एक हब है पाकिस्तान, जो सप्लाई करता है टेररिज्म को, वर्किंग एज अ ब्रांच ऑफ ज़ायनिस्ट। एबोटाबाद में किसको बैठा के रखा था? ओसामा बिन लादेन को बिठा के रखा था। किसके बोलने पे बिठा के रखा था? CIA के बोलने पे बिठा के रखा था। कैसे पता चला एबोटाबाद में बैठा हुआ है ओसामा बिन लादेन? 9/11 किसने कराया था? ज़ायनिस्ट ने कराया था, बिन लादेन को यूज करके। जिस दिन 9/11 हुआ था उस दिन ज़ायनिस्ट इजरायलीज नाच रहे थे, जानते हो? सच्चाई से दूर किया जा रहा है, इसलिए यह भ्रम फैलाया जा रहा है। युद्ध अवश्य है, युद्ध आरंभ हो चुका है, हमने पहले ही बताया था आपको, परंतु युद्ध किसके साथ है यह है क्वेश्चन मार्क लोगों के दिमाग में, समझ में नहीं आता। Even if we capture Pakistan, is it going to end terrorism? Pakistan is not manufacturing weapons, high-end weapons and nuclear weapons, which America and Zionists are doing. पाकिस्तान के पास उतना स्वर्ण नहीं है। पाकिस्तान ने भारत का स्वर्ण चोरी करके नहीं बैठा है, ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं। चोरी किसने किया है? किसके बेस पे पूरा फाइनेंशियल इकोनॉमिक चल रहा है आज भारत का? इकोनॉमिक पॉलिटिक बन चुका है जो ज़ायनिस्ट के कारण। वो है अपराधी, वो है जो कंट्रोल कर रहे हैं ये फाइनेंशियल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को, ताकि वो अपने गोल को सिक्योर रख सके और प्रोलॉन्ग कर सके इस वॉर को, और लोगों को गुलाम बना सके। दैट इज वाई पीपल आर बीइंग सीडेटेड विथ एडल्टरेटेड फूड, ताकि उनकी बुद्धि, सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, युद्ध को झेलने की और डिफेंड करने की क्षमता भी समाप्त हो जाए। इसलिए बोलते हैं सात्विक भोजन करने के लिए। तो सीधा आवश्यक मुद्दे पे आते हैं हम, जो परम सत्य है। हमारी वाणी कभी भी बदलती नहीं है जी, वही रहेगी सदैव, जो होना है और जो हो रहा है। प्रकृति अपना भीषण रौद्र रूप ले रही है, वो अगले वीडियो में हम अटैच करके सब बताएंगे। भारतवर्ष में हर कोने में, बहुत से कोने में, मेजर रीजन्स में भयावह रूप से आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बाढ़ की स्थितियां बन रही है, प्रलयकारी स्थिति पैरेलली अपनी चल रही है। ये सबको पता है, ये हो रहा है, और साथ में युद्ध की पूर्ण स्थितियां बन रही है। अब ये जो सायरन्स और ये सब का उपयोग किया गया, जो भी है, कली की सरकार ने जिस भी अपने निजी प्राइवेट उद्देश्य से ये लोगों को इस प्रकार भ्रमित कर दिया रहा, परंतु इसमें एक बेनिफिट सबका ये हो गया रहा, भला ये हो गया रहा इनडायरेक्टली, क्योंकि हमने बताया कली कोई भी कदम स्वार्थ पूर्वक
तामसिकता से अपने अधर्म के स्वार्थ के लिए करेगा, उसमें लोगों का भला होगा, क्योंकि अभी कली की पतन का समय है, मरेगा वो, इसलिए वो ये सब कर रहा है। उसको पता है कि कल के महाराज आ गए हैं, भारतवर्ष में बैठे हैं, मध्य में नागपुर क्षेत्र में बैठे हुए हैं, बता दिया है उसने। ज़ायनिस्ट इजरायलियों को जेरूसलम में बैठा है, वहाँ बैठा हुआ है कली, दज्जल बन के, पिशाच प्रेत है वो, जो सबको चलाता है मन से, उसके कई हाथ है, ये सारे देश उन्हीं के हाथ हैं, मलेच वेस्टर्न कंट्रीज। इसने बताया है कि वो वहाँ है, आ गया है, नारायण है वो, महाभारत का युद्ध देखा रहा, समझा रहा, परास्त कर दिया था, दुर्योधन को मेरे हाथ को परास्त कर चुका है, आज वो है यहाँ, और वो तुमको सबको परास्त करेगा, धर्म की क्षमता, सत्य की क्षमता शक्ति से। मार नहीं सकते तुम उसे, तुम उसको डिले कर सकते हो, मार नहीं सकते, परंतु जो भी है करो, भारत की भूमि में आतंक फैलाओ, ये कली ने फैलाया है, ज़ायनिस्ट को बताया है। समझ में आ गया कारण, यह आध्यात्मिक कारण इसका बीज है। अभी इससे संबंधित हम बता रहे हैं, बेलीजरेंट्स जो होने वाला है, बेलीजरेंट्स कौन रहने वाले हैं, ध्यान से सुनो, ये बदल नहीं सकता, ये हमारे श्री हरि वासुदेव नारायण गोपाल कृष्ण की वाणी है। हम भगवत गीता के दाता हैं जी, हमारे ही मधुर स्वर से पावन कुरुक्षेत्र की भूमि में श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण हुआ था, वार्तालाप के रूप में रहा वह अर्जुन के साथ, और ये हमारी धर्म की उन्नति सिद्धि को सिद्ध करता है, जो आज भी श्रीमद् भगवत गीता की वाणी की रक्षा के लिए हम धरातल पर है। अभी बेलीजरेंट्स जो रहने वाले हैं वो हम स्पष्ट बता रहे हैं आपको। देखिए, दो पक्ष, धर्म और अधर्म। अधर्म के जो पक्ष रहेंगे बेलीजरेंट्स, इसको हम एलाइड पावर्स ऑफ सेटेनिक पावर्स बोलेंगे। सेटेनिक पावर्स जो रहेंगे, शैतान, एलाइड सेटेनिक पावर्स, इसमें कौन रहेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड इजराइल, थर्ड इसमें सर्वेंट्स ऑफ अमेरिका इन इजराइल आ गया, ट्राइलेटरल कमीशन आ गया यहाँ पे। थर्ड रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को फंड करने वाला रहेगा चाइना, चाइना भी रहेगा इसमें। ये एलाइड सेटेनिक ग्रुप्स है जी, एलाइड सेटेनिक पावर जो बेलिजरेंट है एक वॉर का, वर्ल्ड वॉर 3 का, सुन लीजिए। फोर्थ रहेगा ये चाइना, ठीक है। फिफ्थ बांग्लादेश, समझ में आ गया, जो भारत के विरुद्ध रहेंगे युद्ध में। समझो पिशाची कौरव की सेना है ये, कौरव से भी नीच है ये। कौरव को कुछ अध्यात्म समझता था, भीष्म पितामह थे उनमें, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। ये अधर्म का पक्ष है, शैतान का पक्ष है, ये शैतान का पक्ष है, रिपीट कर रहे हैं, शैतान का पक्ष है। एंड सम कंट्रीज ऑफ यूरोप रहेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें रहेंगे, मेजरली रहेंगे फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ये सब हो गए एलाइड सेटेनिक पावर्स, शैतान। समझ में आ गया? एट द हेल्म ऑफ सेटेनिक रिचुअल्स रहेंगे यूएसए, जो सेटेनिक ग्रुप को लीड करेगा। अब बेलिजरेंट में जो धर्म के पक्ष है, जो धर्म का की नींव है, ऑब्वियसली सबको पता है, भारत, इंडिया, भारत रहेगा। भारत के साथ अब कौन से कंट्रीज रहेंगे, ये बहुत गुप्त इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ये आगे होने वाला है जी। यही सब जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही समय काल चक्र, वैसे ही हमारे धर्म रूपी रथ को, काल रूपी रथ को लेकर चल रहा है जी। भारत के साथ रहेगा ईरान, ईरान साइड कर लेगा भारत के साथ। तीसरा कंट्री जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चांसेस थोड़ी सी ज्यादा है होने की,
भारत के साथ जुड़ने की, वो रहेगा रशिया, रूस, इंडिया, ईरान, रशिया, एंड चौथा कुछ अदर स्मॉलर कंट्रीज रहेंगे जो भारत के पक्ष में आ जाएंगे, जो अपनी सेना दे देंगे भारत को धर्म के लिए, अमेरिका इजराइल को परास्त करने के लिए। जी, ये है ज़ायनिस्ट घोर पिशाच कली, और यही पिशाच दज्जल कली बाहर निकलेगा यहीं पर। समझ में आ रहा है? और चौथा, जो धर्म के पक्ष में शायद भारत का साथ बाद में दे सकता है, वो हो सकता है जर्मनी। इफ द प्राइवेट लीडरशिप ऑफ जर्मनी चेंजेस, तभी होगा। जर्मनी भारत के पक्ष में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, परंतु हमने कोर कंट्रीज बता दिया आपको, 2 बेलिजेंट्स बता दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम सीधी बात आपको बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये जो अधर्म का जो पक्ष बना है शैतान का, जब हमने आपको एलाइड सेटनिक पावर्स बताए, ये भारत के विरुद्ध क्यों लाइन अप हो रहे हैं? क्यों? इतनी क्या परेशानी है भारत से? छोटा सा देश है अमेरिका के तुलना में, उनको हिसाब से जो यही सोचते हैं ना, वो क्या है भारत के पास, सोना होना तो सब ले लिया है भारत से, छोड़ा क्या है यहाँ पे? तो भारत को क्यों नष्ट करना चाह रहे हो? क्यों यहाँ पे आतंक ला रहे हो? क्या है ऐसा? पीस लविंग कंट्री है भारत, क्यों कर रहे हो ऐसे? क्यों मासूमों को मार रहे हो? क्योंकि भारत इज द लैंड ऑफ धर्म, भारत इज द लैंड ऑफ ट्रुथ, भारत इज द लैंड ऑफ ट्रू डिवाइन पावर, भारत इज द लैंड ऑफ महाभारत, भारत इज द लैंड ऑफ रामायण, भारत इज द लैंड ऑफ 18 महापुराणास, भारत इज द लैंड ऑफ नारायण, भारत इज द लैंड ऑफ गुरु और परशुराम, भारत इज द लैंड ऑफ दुर्गा देवी, भारत इज द लैंड ऑफ कैलाश पर्वत भगवान शंकर, भारत इज द लैंड ऑफ आइडियल्स एंड राइटियसनेस। ये तो समझदारी हो गई, मॉरल्स हो गए। इसके साथ भौतिकता में द टेरेंस, द एग्रीकल्चर इज प्राइमेवल as and most beneficial to the world for survival. It be medicine, it be Ayurveda, or any sattvic crop that can be grown on the land and pure land of Bharat. That is why it needs to be captured and kept as a slave for use of Zionist satanic allied powers like America and Israeli Zionists. समझ में आ गया आपको? इससे सरलता से कोई नहीं बता सकता ये जो हमने आपको स्पष्ट कल की महाराज ने सोशल मीडिया में पहली बार और अंतिम बार हमने बता दिया है। बस ये कारण है कि ये भारत से युद्ध करना चाहते हैं, और बिकॉज दे वॉन्ट टू रिटेन द टाइटल ऑफ रिमेनिंग किंग ऑफ हेट्रेड, किंग ऑफ स्प्रेडिंग टेररिज्म, king of controlling all financial affairs of Bharat and spreading slavery, diseases, and watching them die in pain, being full of hypocrisy and barbaric activities, बेरहमी से हत्या कर देना और हंसना, यही करता है ज़ायनिस्ट कली। जो गाजा में कर रहा है वही भारत में करने की चेष्टा कर रहा है। जाने से पहले अंतिम कारण बता रहे हैं कि भारत पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं। ये हमने जैसे बताया रहा, घुसपैठ है और भारत में घुसेंगे, ये हमने बताया था बार बार, और वो समय आ गया है, इसलिए कर रहे हैं। ये बात आप सोचो, प्रश्न करो आप अपने आप से। आपको क्या लगता है महाभारत, रामायण, महापुराणों को इन्होंने ट्रांसलेट क्यों किया था? यदि इनमें कोई ऊर्जा नहीं थी तो ट्रांसलेट क्यों किया? तुमको सोना चाहिए था ना, भारत का ले जाओ, सब कुछ सब ले लो, साला कुछ नहीं चाहिए हमको। तुमको सोना चाहिए था, तुमको भारत की भूमि चाहिए, ले लो, साले सब चाहिए जो तुमको। पिशाच, और कर भी क्या सकते हो तुम, स्वार्थी, नालायक, अधर्म के स्वार्थ पुजारी, दिखावे की पूजा करने वाले, मलिन तत्व से भरे हुए मलेच्छ, ढोंगी,
दलाल है साले, सब दलाल। मासूमों की हत्या कर रहे हैं भारत में, दलाल है। महाकुंभ में भी हत्या किए, और ये हत्या में लोगों के हत्या करके उनके लाश के ऊपर अपनी रेड कारपेट बिठा के कुर्सी लगा के बैठ रहे हैं, और उसी से कुर्सी घसीट के ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं ये पिशाच। कितने दूर जाएंगे? असत्य लेके कहां तक जाओगे? नष्ट तो हो गए ही ना। अभी तो महासंग्राम युद्ध है जो छिड़ गया है तुम्हारी मस्ती के कारण। तो समझ में आया? क्योंकि शक्ति है, महाभारत रामायण महापुराण में जो शक्ति है, एक और पिशाच खाली जानता है। उसने जेरूसलम में ज़ायनिस को बोला था यूके द्वारा कि जाओ मकाले को भेजो, उसके नौकरों को भेजो, ट्रांसलेट करो और बदलाव करो, और उसके विरुद्ध आचरण सिखाओ, पांच धर्म के बीच फैलाओ, नशे में धुत कर दो, तो धर्म से दूर हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएगा भारत, तपहीन हो जाएगा। क्योंकि भारत की भूमि रहेगी तो असत्य रहेगा हमारे हाथ में। यदि वह गुलाम रहेगा तो, अगर सत्य आ जाएगा तो वो बहुत शक्तिशाली है। पिशाच असुरों को नष्ट कर देंगे, हमें कली भी नष्ट हो जाएगा हमारा जो आधीश्वर है। इसीलिए वो भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। हरिओम।